Whiteboard is visible. Whiteboard is visible. Yes, sir. So yesterday we were talking about conjugate lines. So when two lines are conjugate, कौन बताएगा? When we say two lines are conjugate, बोलिए. When two lines are conjugate, सर जब एक लाइन का पोल दूसरे लाइन के पोल पे लाई करता है. ठीक है. सिंपल वन लाइन में क्या है कि अगर एक लाइन का पोल दूसरी लाइन में लाई करता है, मींस if you have a pole, then this is the polar line of this, and suppose you have another pole is here, then this is the polar line of this. So the polar of P line lying on this line L1, and the polar of Q is lying on this. The P is lying on this line L2. So L1 is the polar of P, L2 is the polar of Q. So if it is the case, then we say these two lines are conjugate. तो कंडीशन हम कल डिस्कस कर रहे थे, टॉपिक था कंडीशन फॉर टू गिवन लाइंस शुड बी कॉन्जुगेट. कंडीशन ऑफ conjugacy, you can say condition of conjugacy of two lines. So I will consider, let us suppose two lines are given to you. Let two conjugate line, in fact two conjugate lines be Lx plus my plus n is equal to 0, and L dash x plus m dash y plus n dash is equal to 0. These are two conjugate lines, and it is understood if these are conjugate lines, so they must be polar of some point, है ना. ये भी polar है, यही polar है. And let conic be S is ax square is equal to 0. It is equal to 0. It is equation number 3. Okay. So now I will find what is the condition. Condition means I will find what the relation should be there in the coefficients of x, y and constant term, so that the lines are conjugate. है ना. इनमें क्या relation हो हमें कि उस relation को check करके we can find immediately that the lines are conjugate. So I will find some relation in L, M, N, L dash, M dash, N dash. So I will take the help of a polar line. So for polar you need a pole. Suppose P is the pole. Let some point P, x dash, y dash be the pole of इक्वेशन 1, है ना. इस 1 का पोल है ये, यानी कि ये लाइन सपोज L1 जो है, इट इज रिप्रेजेंटिंग बाय 1. सपोज हियर दिस इज योर लाइन 1. सो वी नो देन द इक्वेशन ऑफ द पोलर, देन इक्वेशन ऑफ पोलर of x dash y dash with respect to the given conic, suppose 3 is क्या होगी बताइए. what is the polar equation of polar? equation of polar is what? Same as equation of tangent. रिप्लेस कर देंगे x dash y dash में. Yes, same as tangent है ना. Yes. Difference, you know that x dash y dash are not lying on the conic. So I will replace it by x plus x dash, and 2y will be replaced by y plus y dash plus c is equal to 0. Or I can take, because I want to compare the coefficient of x, y from this equation and this equation, because these two are same. तो इसे हम x coefficient और y coefficient separate कर ले, so I can write the coefficient of x
is how much? Ax dash plus h y dash plus g and plus y coefficient is h x dash plus b y dash plus f, and rest is the constant term, so it is coming here g x dash plus f y dash plus c is equal to 0. It is number 4. So it is a question of polar, and this is also polar. So 4 is nothing but same L1. So I can compare the coefficients. है ना? Since 1 and 4 representing the same line, comparing the coefficients of the like terms, है ना? Like terms के तो ये एक जैसे terms मतलब x y और constant. So you got ax dash plus h y dash plus g upon l, है ना? यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट l है फर्स्ट में. This equal to hx dash plus by dash plus f upon m, and the last term is constant upon n. And suppose this equal to some lambda, say इसे अपने किसी constant के इक्वल मान लिया because I want to solve these three ratios. So now I will not allow to anyone. Now, so by solving, so first equation is coming ax dash plus hy dash plus g is equal to lambda l. So we get ax dash plus hy dash plus g is equal to lambda l. From second ratio, you will be getting hx dash plus by dash plus f is equal to lambda m, and from the last ratio, this one, dx dash plus f y dash plus c is equal to lambda n. Suppose इसको हम नंबर कह देते हैं 5, 6 and 7. And also one more equation is there. What? That 1 and 2 are conjugate lines. So x dash y dash, जो p हमने लिया है, p will be here. So p must lie where? In L2. L2 कहाँ है? This is your L2 है ना? ये तो L2 थी. So you can write, since 1 and 2 they are conjugate lines. They are conjugate lines. So this px dash y dash must lie on 2. So satisfy करेगा. तो second equation क्या थी? L dash x था. So I can put this point it here. So we get L dash x dash plus m dash y dash plus n dash is equal to 0. It is equation number 8. So यहाँ पर you have x dash y dash and this lambda. इसे एलिमिनेट कर लेंगे क्योंकि हमें एडिशन किसमें चाहिए? L m n L dash m dash n dash. तो बाकी जो टर्म है I will eliminate. So eliminating x dash y dash and lambda from 4, 5, 6, 7, 8. We get, तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं? I can write the determinant of this 4 by 4 because we have 4 equation by taking the coefficient of these. So you will be having A, H, G, L, and then first is H, B, F,
M, G, F, C, N, and L dash, M dash, N dash, 0. This is equal to 0. So this 4 by 4 order determined this should be 0. If it is so, then you will be getting the condition of the lines to be conjugate, which is the required condition. That the lines 1 and 2 are conjugate to each other. Of course, with respect to S, with respect to the conic. So ये आपकी एक condition आ जाएगी. It is the condition of conjugation. Next article we have chord with a given middle point. Because later we will be seeing your central conics. Central conics में we will having the concept of middle point is middle point क्या है? Central conics जैसे ellipse है अगर आपका या circle है, that is central conic where center is the point which bisect all the chords passing through it. है ना? ellipse ले लें आप, उसका जो center है वो center की क्या property है? This center will bisect every chord passing through it, है ना? यही property है आपकी ellipse की. Any chord will be bisected. क्यों भाई? Is it clear? Obvious है? You can check it also. So that means this midpoint is important. So first we have equation chord with the given middle point. Next topic. This is your topic number 6.5. Page number 77. Chord with given middle point. मतलब मिडिल पॉइंट आपको अगर कॉर्ड का गिवन, तो सपोज लेट x dash y dash be the middle point of a chord, be the middle point of a chord. कोई भी अपने आर्बिट्रेरी कॉर्ड ले लिया, हाँ जरूरी नहीं सेट. ये है आपके पास और ये कॉर्ड जा रही है, इसका मिडिल पॉइंट सपोज ये आपको गिवन है. दिस इज योर पॉइंट x dash y dash and this is your conic S is 0 of a chord of the conic S is equal to 0. ठीक, हमें यहाँ पर chord की इक्वेशन निकालनी है. What is the equation of this chord if you know the middle point and you know the conic? Okay, ठीक है भाई, बताइए. मोहम्मद कैफ STB 9196 क्लास में है? जी 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 सर. क्लास में ही है, कहीं और है? जी सर. जी सर. तो हमें क्या क्या निकालना है यहाँ पे? है क्या, किसकी इक्वेशन निकालनी है यहाँ पर हमें? सर कॉर्ड. कैसी कॉर्ड की? सर कॉर्ड विद अ गिवन मिडिल पॉइंट. चलो एटलीस्ट देख के पढ़ तो सकते हो, अच्छी बात है.
अगर हमें कोई मिडिल पॉइंट गिवन है तो उस कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू सम कोनिक। तो आपने क्या करा, लेट द इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड पासिंग थ्रू दिस, जनरल इक्वेशन मानते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। लेट द कॉर्ड पासिंग थ्रू this point x dash y dash be x minus x dash upon L is equal to y minus y dash upon M is equal to R। इसे हम R के पर मान लेते हैं। You know R is the algebraic distance between x and x dash and y and y dash। ये डिस्टेंस होती है इसके बीच में। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है जिसके रूट्स आते हैं आपके पास, तो ये डिस्टेंस होगी बिटवीन, क्योंकि एक्स वाई आपका यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी है ना, तो टू डिस्टेंस इट विल बी गिवन टू यू। तो वी अज्यूम दिस इज आर। और एल एम एंड आर व्हाट, यहाँ पे एल एन क्या होते हैं भाई, व्हाट इज एल एंड एम? डायरेक्शन कोसाइन। जी ठीक, जकी खान, डायरेक्शन को साइंस होते हैं ना, यू नो दिस, ये आपने यूनिट 1 में पढ़ा होगा। असलम सर ने आपको पढ़ाया था यूनिट 1 में, तो ही मस्ट हैव टॉट यू ऑल दिस थिंग्स। सो हियर यू कैन फाइंड x is equal to x dash plus LR and y is equal to y dash plus MR। हमने ये वैल्यू निकाल दी। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन द कोनिक, कि एक्स वाई तो आपके कोनिक में लाई करेंगे, सो पुटिंग इन 1 वी गेट। तो हमें यहाँ क्या करना होता है, 1 में पुट करेंगे और R में क्वाड्रेटिक बनाते हैं ना, क्योंकि जो R के रूट्स आएंगे वो इसकी वैल्यू से आती है। तो हमेशा वैल्यू निकालते हैं जब भी डीसीज की फॉर्म में लिखेंगे आपकी इक्वेशन, एंड वी विल पुट इट दिस। सो यू विल बी गेटिंग a of x square x dash plus LR whole square plus twice h xy x dash plus LR y dash plus MR plus by square, so y dash plus MR whole square plus 2g x dash plus LR plus c is equal to 0। अब यहाँ करना है ओपन द स्क्वायरिंग एंड टेकिंग द r square term then r then constant, है ना। I will make a quadratic polynomial in r, so you can write coefficient of r square, so you can see here r square coefficient क्या आएगा, al square from first plus 2h lm from this, and एक r square term यहाँ से आएगा bm square plus bm square, this is your r square term plus 2r। Here you will be getting this plot, this quadratic I have solved also in previous lectures also। यहाँ पे हमने क्वेश्चन निकाली थी एक बार। Again I am doing this, but it has been done already। hx dash plus by dash plus f, and ये क्या आता है पूरा आपको याद होगा, ax dash square plus 2hx dash y dash क्या होता है, ये इनफैक्ट s dash हो जाता है ना। ये पूरा क्या आएगा s dash, मतलब पॉइंट्स को यहाँ रख दीजिए, ये टर्म आ जाती है s dash। Now it's a quadratic, it will be having 2 roots, है ना। अब रूट्स कैसे होंगे, बिकॉज x dash y dash इज द मिड पॉइंट, तो अगर मिड पॉइंट है तो क्या होगा, कैप इट इज द मिड पॉइंट, तो जो डिस्टेंस ये आएगी ये डिस्टेंस इसकी ये होगी, तो क्या होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन, है ना, क्योंकि मिड पॉइंट है, यू नो दिस थिंग। सो द एक अगर आर होगा तो अगला माइनस आर होगा। यस, है ना, यू कैन अंडरस्टैंड, सिंपल सी बात है, अगर ये मिड पॉइंट होता है तो द टू रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in sign, रीजन आपका पता है आपको, अपोजिट इन साइन, सिंस x dash y dash is the midpoint, रीजन में यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा होगा तो व्हाट अबाउट सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, जीरो होगा सर ना, जीरो होगा। यस सर 0 होगा। जीरो होगा, है ना।
अगर रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जैसे एक 2 है तो दूसरा -2 है, एक a है तो दूसरा माइनस है, सम ऑफ द रूट 0 होगा। तो सम ऑफ द रूट्स आपको पता क्या होता है, -b/a। तो a में जो नीचे आएगा ये पूरा a आएगा, तो ये तो 0 में चला जाएगा, तो यू विल बी हैविंग ओनली दिस टर्म इज इक्वल टू 0, है ना, -b/a जब हम करेंगे तो यू विल बी हैविंग ओनली दिस टर्म, L of ax dash plus hy dash plus g plus m times h of x dash plus b of y dash plus f is equal to 0, है ना, बाई फॉर्मूला -b/a। तो -b में ये -b है, ये सब 0 में चला जाएगा। तो यू गॉट दिस थिंग। इसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 2 इसे 3 लिख देते हैं। आपके पास ये 1 था, इट वाज 2 सपोज, इसे अभी यूज करना मुझे आगे, ये 3 हो गया। एक रिलेशन मिली आपको एल एम में, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन चाहिए तो एल और एम को क्या कर देना होता है, हमें एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर अब फ्रॉम 2 and 3 वी विल बी एलिमिनेटिंग, सो एलिमिनेटिंग L and M from 2 से 3 में हमें एलिमिनेट करना है, या ये कह सकते हैं एलिमिनेटिंग बाय 2 फ्रॉम, क्या लिख दिए, एलिमिनेटिंग L and M बाय 2 in 3 वी गेट। तो 2 से क्या वैल्यू आएगी आपके पास, L की वैल्यू x माइनस एक्स डैश अपॉन r, M की वैल्यू y माइनस वाई डैश अपॉन r, इसको यहाँ पे उठा के पुट कर दिए 3। सो 3 विल बी चेंज टू ax डैश प्लस hy डैश प्लस g, और जो L का टर्म था इट विल बिकम x माइनस एक्स डैश अपॉन r। प्लस h x डैश प्लस b y डैश प्लस f y माइनस वाई डैश अपॉन r इज इक्वल टू 0, है ना। ये r भी आपका 0 में चला जाएगा, तो इसको r को भी रिमूव कर सकते हैं, 0 में चला जाएगा कॉमन लेके। सो यू गॉट, तो आई गॉट आफ्टर सॉल्विंग, इसे सॉल्व कर लें जरा। तो यू हैव a x x डैश प्लस h के साथ क्या आएगा, देखिए x y डैश आएगा यहाँ से, और यहाँ पर क्या आएगा x डैश y, यानी कि y x डैश प्लस b का टर्म लिख रहा हूँ मैं, इससे पहले इस फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म आने वाली है, तो मैं लिख रहा हूँ उसी टर्म में a h b g f c। पहले a का टर्म लिखा, फिर h का, नाउ आई एम राइटिंग b टर्म। b के साथ क्या आ रहा है यहाँ पर देखिएगा, b y डैश प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई, ये टर्म आएंगे, एंड हेयर रेस्ट ऑफ द टर्म जो माइनस साइन आएगा ए एक्स डैश स्क्वायर, आई एम टेकिंग राइट हैंड साइड, ए एक्स डैश स्क्वायर का टर्म आएगा, और क्या आएगा देखिए एक्स डैश वाई डैश के टर्म आएंगे, माइनस एच एक्स डैश वाई डैश माइनस एच एक्स डैश वाई डैश, -2 हो जाएगा, इधर आके इट विल बिकम ट्वाइस एच एक्स डैश वाई डैश प्लस माइनस बी वाई डैश स्क्वायर होगा, टेक राइट हैंड साइड, तो प्लस बी वाई डैश, सारे नेगेटिव टर्म्स आई एम टेकिंग ऑन द राइट हैंड साइड। सिमिलरली माइनस जी एक्स डैश टर्म आएगा, इससे माइनस जी एक्स डैश, इट इज हियर, इट विल बिकम जी एक्स डैश, सिमिलरली प्लस एफ वाई डैश। अब देखो इसमें कुछ कमी है, अभी क्या मिसिंग है, एक तो दोनों तरफ सी नहीं है, और यहाँ पे 2 चाहिए होता था हमें, 2gx 2fy प्लस सी, और यहाँ होना चाहिए था 2gx डैश प्लस 2fy डैश प्लस सी। तो क्या करें, अगर मैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ तो व्हाट आई विल डू, आई विल एडिंग Sir, adding both sides. gx डैश प्लस fy डैश प्लस सी टू बोथ साइड, ये ऐड कर दो, क्योंकि थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। सर आर कहाँ गया वो समझ में नहीं आया। आर तो कॉमन नीचे लेके इधर चला जाएगा ना, आर एलसीएम ले लो यहाँ से, आर यहाँ पर कट भी जाएगा। अपॉन आर 1/r, हाँ, तो आर Okay, इज sir. नॉन जीरो टर्म, तो आर कैन गो टू 0 इनटू समथिंग, ठीक है, ये है। तो आर मैंने कट ऐसे करा है क्योंकि उधर 0 है, 0 का मतलब क्या है 0/r, तो आर कैंसिल हो गया, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था।
चलिए, सो नाउ आई एम एडिंग दिस टर्म टू मेक इट इन सम स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, सब डिजायरेबल फॉर्म, ताकि हम इसे इजीली देख सके। तो इससे क्या होगा, देखिए अब आपके पास मिलेगा ए एक्स एक्स डैश प्लस, अब यहाँ एच एक्स वाई था, ये टर्म भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस बी वाई वाई डैश भी ठीक है, दिस टर्म इज आल्सो ओके, है ना, ये थर्ड टर्म इज आल्सो ओके। जी एक्स में हमारे पास क्या था, जब जी एक्स डैश ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये टर्म मिल जाएगा एक हमें यहाँ पे, एफ वाई ऐड करा तो यू विल बी गेटिंग वाई प्लस वाई डैश प्लस सी। तो राइट हैंड साइड में आपको क्या मिल गया, ये टी मिल गया, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में व्हेन यू विल बी एडिंग, तो व्हाट विल हैपन, ए एक्स डैश स्क्वायर प्लस 2x डैश वाई डैश प्लस बी वाई स्क्वायर, जी एक्स डैश और जी एक्स डैश ऐड होके हाउ मच, ट्वाइस जी एक्स डैश एफ वाई डैश प्लस 2 FY डैश प्लस सी। ये क्या चीज है, एस डैश। तो क्या मिला S आपको, dash. यू गॉट टी इज इक्वल टू एस डैश, एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मिली। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड एक्चुअली। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या है, यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश ए बी, ये सब तो रियल नंबर्स होंगे, गिवन होंगे, एक्स वाई में इक्वेशन मिलेगी जब आपसे सॉल्व, है ना, राइट हैंड साइड भी पूरा आपके पास कुछ स्केलर आ जाएगा। तो बेसिकली इट इज अ इक्वेशन, तो किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड। सो दिस इज द, इसे अगर मैं नंबर पीछे नंबर हमने क्या डाले थे, 3 तक था, नंबर 4, सो दिस इज द इक्वेशन of a chord whose middle point is given to you, whose middle point is x dash y dash, ठीक है। बस आपको क्या करना होगा, उस पॉइंट को हम इस इक्वेशन में रख देंगे t इज इक्वल टू एस डैश में और सॉल्व कर लेंगे, तो इजीली आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल 2 यू विल डू, एग्जाम्पल 2 A78, it is your home assignment problem. Example 3 I will do, 78 page पर, show that the locus of middle points of chords of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, passing through a fixed point h comma k is b square x of x minus h plus a square y minus k is equal to 0, ठीक। तो हमें क्या शो करना है, लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ द एलिप्स, यानी कि इसके मिडिल पॉइंट से जो कॉर्ड्स पास होंगी, है ना, इसका मिडिल पॉइंट आपको मालूम है ओरिजिन होता है ना, पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, और एक फिक्स पॉइंट से पास भी हो रही है वो, उसका लोकस ये होगा। एक पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, सारी कॉर्ड जो भी मिडिल पॉइंट से पास हो रही है वो इस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, ऐसी जो कॉर्ड्स का लोकस आएगा, इट विल बी दिस लाइन, है ना, दिस कर्व। ये क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, वाई स्क्वायर, तो ये लाइन नहीं है, ये इट विल बी सम कर्व, देखिए। तो हमें मालूम है क्वेश्चन ऑफ कॉर्ड क्या होता है, हियर एस इज गिविंग टू यू, हियर एस इज दिस कर्व, प्लेन कर्व है, ellipse is the plane curve, so the equation of chord t is equal to s dash, है ना, where x dash y dash is the middle point, where we are taking, क्योंकि s dash कब आएगा, जब x dash y dash रखेंगे,
where x dash y dash is the middle point of the chord. So t is equal to s dash means x dash upon a square plus y dash upon b square minus 1 is equal to x dash square upon a square plus y dash square upon b square minus 1. इसे सॉल्व कर सकते हैं, वन इज कैंसिल आउट, तो यू हैव दिस. नाउ इट इज गिवन दैट ये कॉर्ड है, दिस कॉर्ड इज पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एस कॉमा के, है ना. नाउ गिवन दैट दिस कॉर्ड इज पासिंग थ्रू एच कॉमा के, एच कॉमा के, तो क्या होगा भाई, ये सेटिस्फाई करेगी. आई कैन पुट एक्स एच वाई के, है ना, एच एक्स डैश अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं. ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम लेंगे आप, और यहाँ पर भी तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या टर्म आएगा बताइए, बी स्क्वायर एच एक्स डैश प्लस ए स्क्वायर के वाई डैश, है ना. यहाँ एलसीएम लिया हमने, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, चलो एक टर्म और लिखते हैं हियर, बी स्क्वायर एक्स डैश स्क्वायर, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा. नाउ आई कैन राइट इसे, जिस फॉर्म में प्रूफ करना है, प्रूफ में बी स्क्वायर टर्म एक साथ चाहिए, इसे आप अरेंज कर सकते हैं. तो बी स्क्वायर के टर्म इफ आई विल अरेंज, तो बी स्क्वायर और एक्स डैश कॉमन लिया हमने, तो यहाँ बचा एच और हियर माइनस एक्स डैश प्लस ए स्क्वायर वाई डैश कॉमन ले लिया, तो यू हैव के माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0. सो द लोकस इज बी स्क्वायर एक्स, ना एक्स रख देंगे यहाँ पे, और इसे एक्स माइनस एच लिख दे रहा हूँ मैं, उस फॉर्म में माइनस बाहर कॉमन ले लिए, माइनस यहाँ से वो 0 में चले जाएगा, प्लस ए स्क्वायर वाई वाई माइनस के इज इक्वल टू 0. ये हमें प्रूफ कर, ठीक है, ये इस फॉर्म में लिया है हम, जिसमें प्रूफ करना. तो सिंपल सी प्रॉब्लम थी ये, क्लियर है ये. यस सर. यस सर. ठीक है सर ये भी एक प्रॉब्लम है 4, इसे आप करेंगे मिडिल पॉइंट के ऊपर ही है, लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स. नेक्स्ट टॉपिक हम, अच्छा, इफ अ कॉर्ड इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट देन पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द कोनिक, है ना. एक डेफिनेशन है ये 6.6 पे एक डेफिनेशन है, लिख दे रहा हूँ अभी आपके पास, वी हैव 2 मिनट्स. इफ एनी कॉर्ड ऑफ अ कोनिक थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, if any chord of a conic through a particular point this is bisected, नेट स्लो चल रहा है क्या, बहुत देर में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, ये स्लो लेट पहुंच रहा है, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको एकदम मिल जा रहा है. Yes, sir. नहीं We are सर, getting some हाँ. late आ रहा है. हाँ, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम इन नेटवर्क, देखिए मैं लिख ही नहीं पा रहा चक्कर. बाय दैट पॉइंट, that particular point is called the center, that point is called, लिख ही नहीं पा रहा यार, पता नहीं क्या हो रहा है. that point is called the center of the conic, that point is called the, अभी नहीं लिख पा रहा हूँ, ऐसे नहीं चलेगा. उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द कोनिक कहते हैं, और ऐसे कोनिक को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल कोनिक. ओके, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज, हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ अ कोनिक, जैसे हाइपरबोला है, एलिप्स है या सर्किल है, इन सब के
ये सब सेंटर कोनिक है हमारे, इनका एक सेंटर मिल सकता है। पैराबोला इज नॉट अ सेंट्रल कोनिक, वहां पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा which will be bisecting all the chords passing through that point. Okay, so I will continue this tomorrow, means in the next lecture, and I will share your ओके lecture, today's lecture. चलिए, okay, bye. सैटरडे को क्लास है ना?